जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी पंजाब तो गुरु जी का शुकराना सत्संग शेयर करन लगी हाँ। टाइम 11:15 रात दे। शुकराना गुरु जी का शुकराना सत्संग। जय गुरु जी के मंत्र जापना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अज 13 जून नूं गुरु जी का शुकराना सत्संग 11:15 ते। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं पिछला अपना सत्संग शायद 9, 10, 11 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10 ਜਾਂ 11 ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ 9 ਜੂਨ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸੁਪਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਰਬਾਂ ਕਰਬਾਂ ਵਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਰੀ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਰਹਿਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ 2-4 ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਏ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੈਰਿਡ ਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ 1-2 ਘਰਾਂ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਂਢਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗਵਾਂਢਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ। ਮਾਲਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਹੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਮਾਲਕੋ, ਇਸ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਏ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਰਬਾਂ ਕਰਬਾਂ ਵਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਕੇ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ 27 ਆ, 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਆਉਣਾ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਪਊਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਡੈ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਹਾਂ ਵੱਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰੀਕ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘਰ ਬਣਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਿਓ ਮਾਲਕੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਦੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀ ਮਾਲਕਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ 14 ਜੂਨ ਸੀ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਲੀ ਜੀ ਦਾਲ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ
दाल सब्जी बनाਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ कि सब कुछ ਵਿੱਚ डाल देना, प्याज लून मिर्च मसाला जो भी सब कुछ डाल देना ते घ्यो पा के ते जीरे का झोंका लगा के ते दाल विच पा देना। संगत जी अज भी मैं गुरु जी ने दाल ऐसी बना के खवाई, पतली जी मूंगी मसरी दी ते नाल प्याज अचार चटनी तो नहीं बनाई, माफ़ करना गुरु जी। नाल फुलका बना के मैं शाम का भोजन रात का गुरु जी ने खवाया। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना मालका तेरा लख लख वारी शुकराना पिता जी। संगत जी गुरु जी की किरपा नाल सब काम संपूर्ण होणगे। कहंदे पुत्तर तू ना टेंशन लिया कर, सारे काम तेरे अपने आप ही बनते जाने। तेन मैं कोठी ब्लैस की है, तेरी कोठी भी बनूंगी, विच सत्संग भी बहुत वड्डा होगा। जय गुरु जी। संगत जी मेरी इहो ही तमन्ना वा कि मैं अपने गुरु जी का जन्मदिन मैं अपनी नवे घर विच मनावां, नवी कोठी विच मनावां। जय गुरु जी, शुकराना गुरु, शुकराना पिता जी, कोटि कोटि धन्नवाद, अरबां खरबां वारी शुकराना। जय गुरु जी। कहंदे पुत्तर तू टेंशन ना लिया कर, तू बहुत टेंशन लैनी है। जी गुरु जी नहीं लेंदी टेंशन। संगत जी मेरा बेटा, मैं अगे भी उस दिन आंटी ने शेयर किया सी कि मेरा बेटे का कल भी फोन आया, कहंदा मम्मी माता तू जांदी नहीं अमृतसर। ते मैं क्या मैं अमृतसर जाके की करूं बेटा? कहंदा मासी नूं नाल लैके कोई मजीठे सियाणा ओहदे वाले जा। ते संगत जी जदों मैं हसदी आ ना, मेरा हासा बहुत जोर दे निकलदा कि की कहंदा वा किसे सियाणे वाले जा। मेरे प्यो तो सियाणा, प्यो तो वड्डा सियाणा कोई नहीं है, क्योंकि मेरा प्यो ही सब तो वड्डा सियाणा वा। इस वेले मालक ब्रह्मंड दे राजे दा हत्थ मेरे सिर ते, मैं सियाणे मलाणिਆਂ ਨੂੰ की ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ जिन्हां कोल पैसा वा बर्बाद करदियां ने एक दूजे दे ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਤੇ, ਉਹੀ ਤੁਰੀਆਂ ਰਹਿਣ। मैं ਤਾਂ नहीं ਜਾਂਦੀ, मेरा तो प्यो मेरे वाल आ। मैं अपने प्यो दे सिर ते बैठी आ वेले, मेरा मालक मेरे नाल आ, मैनूं नहीं किसे सियाणे दी लोड़। सियाणे एक साइड ते हो जांदे मेरे प्यो नूं वेख के, बोले नाथ गड़ी कोई अड़जू ना अड़े सुचड़े। जय गुरु जी। मालक किरपा करना, मालक की किरपा करना है, उन्हां ही करनी। मैनू किसी ते भरोसा नहीं, मैनू अपने प्यो ते भरोसा। मैं सबर करके बैठी हूँ। मेरे प्यो कहंदा वा तू बहुत सबर कीता पुत्त, तेरे सबर दा फल तेन मैं नींबू वांगन निचोड़िया, तू हर सबजैक्ट चों पास होई। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना पिता जी। अपनी धी पास करने वाला है मालका तेरा लख लख वारी शुकराना। अजे भी सबर करके बैठी हूँ, जदों भी मालक शुरू करनगे। हुण तरीक निकली है 16 यानी 6 ते 1 7। वेखो मालक दे रंग न्यारे, शायद बुधवार मिस्त्री आ जाण मालक दी किरपा नाल। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। बाकी मेरा प्यो आपे देखूगा की करना की नहीं करना। शुकराना पिता जी, कोटि कोटि धन्नवाद, अरबां खरबां वारी शुकराना मेरे मालका। अपनी धी दी पिठ ना लगन देई बाबला, तेरे कोटि कोटि धन्नवाद धन्नवाद। शरीक मेरे बहुत हसदे मेरे ते बहुत ज्यादा, पर मैं अपने मालक दा नां 24 घंटे लेनी। हे मालका तू ही आ पिता जी, जे हसदे इन्हां नूं होर हसा, इन्हां नूं होर हसाए, बहुत खुश रहन। पर तेरी धी दी इज्जत तेरे हत्थ आ मेरे मालका, तेरे हत्थ विच आ। शुकराना पिता जी, कोटि कोटि धन्नवाद। कहंदे पुत्तर तेरा पुत्र करोड़पति बनू, तेरा नाम हो जग ते। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। तेरे ते लोकी वेख के नहीं हसणगे, तेरे नूं सलामा कर कर लंघणगे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु, शुकराना पिता जी। इन्ना तैनूं करोड़पति तेरे बच्चे ने बनना, करोड़पति। जय गुरु जी, शुकराना गुरु। बहुत नाम रोशन करू तेरा बच्चा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु, शुकराना पिता जी, शुकराना मालका तेरा लख लख वारी शुकराना। कहंदे पुत्तर इस हफ्ते दे विच तैनूं बहुत वड्डी खुशखबरी मिलण वाली है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु, शुकराना मालका, लख लख वारी शुकराना मालका तेरा कोटि कोटि धन्नवाद, अरबां खरबां वारी शुकराना मेरे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साए। इत्थे मैं अपने सत्संग नूं विराम दिंदी हां। संगत जी मैं सुबह सुबह 8 बजे तक 3-4 सत्संग सुन लैनी आ गुरु जी ते, पर मैं सुन रीझ ना लैनी आ। पर जदों 8 वजदे आ, मेरा पोता उठ खलोंदा वा, 9-10 साल दा वा, फिर मुड़ के सारा दिन मैनूं फोन नहीं दिंदा ते उस तरह ख्याल भुल जांदा कि किहड़ा सुनिया किहड़ा नहीं। ते मैं जरूर लिख लिया करूँगी, मैनूं फटा जल्दी चेता भुल जांदा।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु, शुकराना मालका तेरा लख लख वारी शुकराना। कहंदे पुत्र गर्मी आ गई आ, मेरे लागे पानी रखिया कर, मैं तेरे घर विच विराजमान हाँ। जल भर के रखिया कर। ते अज मैं मग भर के जल रखिया गुरु जी की कृपा नाल। जल तो वैसे रख लईदा, वो सुबह पी लईदा। जय गुरु जी, शुकराना। अज मैं अपने प्यो वास्ते जल रखिया भर के गर्मी बहुत है, पिता जी नूं ते लगदी। जय गुरु जी, शुकराना शुकराना पिता जी, लख लख वारी शुकराना, अरबां खरबां वारी शुकराना। कहंदे पुत्र जदों तू सादा जिहा खाना बनाउंदी आ, मैनूं बहुत स्वाद लगदा। मैं सिंपल जिहा जिहो जिहा माड़ा मोटा घर हैगा संगत जी, उहो जिहा बना लैंदी आं, उहो जिहा मैं अपने प्यो नूं भोग लगा दिंदी कि पिता जी ये लंगर प्रशाद तुसीं ग्रहण करो। अपनी बच्ची दे घर दा, अपने घर दा करो किरपा, मेरा दे साईं ब्लैस करो। ते बहुत आनंद आउंदा जदों मैं अपने प्यो नूं भोग लवाउंदी आं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु, शुकराना तेरा लख लख वारी शुकराना। कह देंदे पुत्र चाह बना, चाह पीए। जय गुरु जी, शुकराना। असीं प्यो दी चाह बैठ के पीने आ। जय गुरु जी, शुकराना शुकराना तेरा लख लख वारी शुकराना, अरबां खरबां वारी शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु। संगत जी मैं इत्थे अपने सत्संग नूं विराम दिंदी आ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक छोटा जिहा सत्संग होर ध्यान च आया। इन्ने पुत्र तेरा पुत्र ਐਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी इस वीक में मुझे गुरुपा ने बहुत सारे प्यारे मैसेज दिए हैं जो कि मैंने पहले भी शेयर किए थे कि पहले तो मुझे यात्रा ब्लेस कर रहे हैं, उसका मैसेज है कि तेरी बैग पैक कर ले, तुझे एक लंबी एक बहुत अच्छी यात्रा मैं ब्लेस कर रहा हूँ और वहाँ तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएगा और तुझे मेरे होने का एहसास हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा। वैसे तो मुझे हर पल हर पल आप अंग संग है और संगत जी और एक बहुत ही प्यारा मैसेज जो गुरुपा का आया है कि और जैसे ही थे मेरे सब मैंने जैसे बताया था कि मेरे जैसे काम इतने पेंडिंग थे संगत जी, बैंक से रिलेटेड, मेरे कोर्ट से रिलेटेड, वो काम में बहुत देरी हो जाती, पर गुरुपा ने ऐसा कमाल कर दिया कि जिस काम को मुझे कंप्लीट करने में 10 या 15 दिन लग जाते, वो काम मेरा पूरे 2 दिन में हो गया। 2 दिन या 1 दिन में हुआ और दूसरे दिन मेरा पूरा एटीएम का भी काम और वो भी काम में वो मैडम ने इतने 10 मिनट में मुझे करवा के दिया। तो ये सब इतने जल्दी से हो गया और मेरा जब वो जो सेटलमेंट था उसका चेक मुझे मिलने वाला था, तो मैं थोड़ी चिंता में थी कि पता नहीं अभी ये कैसे होगा, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो शादी के बाद में चेंज नहीं हुआ था मेरा नाम, और मैं उसी में थोड़ी सी परेशान भी थी कि किस तरह से ये सब चीज़ें मैनेज होगी, पर सब कुछ गुरुपा ने करवा दिया। डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास सब थे और मैंने अपने नाम से फिर से वो नया अकाउंट ओपन किया और उसमें टाइम भी लग सकता था गुरुपा संगत जी, क्योंकि अभी आधार से वो लिंक जो नहीं हुआ था, जो मैंने पहले वाला जो था वो मैंने लिंक नहीं किया था, उसमें कम से कम 10 या 15 दिन 10 दिन से ज़्यादा लग सकते थे। पर उस दिन मैंने शाम को किया और सुबह 12 बजे तक मेरा दूसरे ही दिन हो गया वो काम। तो इतनी जल्दी हो गए मेरे सारे काम और वो भी मेरा चेक भी, मुझे जो अमाउंट चाहिए थी वो भी मुझे मिल गई और वो भी मेरा डिपॉजिट होगा। पर इतने काम में बहुत मतलब कम से कम एक महीना तो मेरा चला जाता अगर मैं चक्कर लगाती, पर गुरुपा ने ऐसी मतलब किया वो सारा काम मुझसे इतनी जल्दी से सब काम होते गए। मैं और वो भी मैं दोपहर के बाद में जाती थी संगत जी, क्योंकि इतनी धूप थी और ऊपर से मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब चल रही थी उस टाइम, तो बहुत ही ये हो रही थी मैं। और फिर उसी टाइम पे मैं वो ड्रिंक और मैं गुरुपा का नाम लेके जाती थी, क्योंकि मुझे पता था मैं बहुत अभी इतनी धूप में मैं सारे काम और अब वैसे तबीयत भी नहीं है। पर उसी टाइम में किसी
के लिए रुकना भी नहीं था और इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं आगे का काम की प्लानिंग करूँ। मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था, पर उसी कम टाइम पे मेरे सारे इतने सारे काम बन गए और मुझे पता था कि ये सब काम मुझसे गुरुपा ने इतने अच्छे से करवा लिए। तो जो काम में मुझे 2 महीने लगते थे 1 महीने से ज़्यादा लग सकते थे दिन, वो काम मेरा संगत जी 2 या 3 दिन में हो गया। तो ये इतना जो भी मेरा हुआ है, तो जीत तो मुझे गुरुपा ने दी है और वो जो बाकी सारे पेंडिंग काम थे, वो भी मेरे इतने अच्छे से करवाए। घर में भी जो जितने भी मेरे काम पेंडिंग थे, वो भी मेरे गुरुपा ने करवाए एक-एक करके। जैसे गुरुपा बोलते हैं कि हर चीज़ में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए, हर उस काम की हम प्लानिंग करते पर वो काम तभी होता है जब हमारे गुरुपा डिसाइड करते, क्योंकि उसके पहले भी अगर कोई शारीरिक तकलीफ है या कोई अड़चन आने वाली है तो उसको पहले ही हमारे गुरुपा बता देते हैं और वो काम रुकवा देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना इतने सारे मेरे काम के लिए। बस तो उसी के रिगार्डिंग मुझे गुरुपा का मैसेज भी आया था, बेटा तेरे काम इतने जल्दी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि तूने मुझ पे भरोसा रखा और कभी ये नहीं देखा और ना ही तूने पूछा कि काम कब, कहाँ, कैसे, किस तरह से हो जाएँगे। सिर्फ़ भरोसा रखा और अपने तूने अच्छे कर्म किए और तेरे काम बनते गए और जिससे मैंने रास्ते खोले और उसी रास्ते पे तू चलने लगी। तो ये सब मुझे ये इतना मतलब मेरे दिल को छू गया ये सच में संगत जी। मैंने जब से जुड़ी हूँ अगर गुरुपा ने कुछ कहा है तो वो चीज़ होके रहेगी ना। मैं जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ संगत जी अपने सत्संग में कि विश्वास की बात है, अगर उन्होंने कहा है थोड़ा-सा लगता है कि कब होगा बस, पर कैसे होगा, कहाँ से होगा, ये गुरुपा ही करते हैं क्योंकि जिस तरह से उन लोग गुरुपा ने मुझे यहाँ तक मेरी जीत दिलवा दी है संगत जी, मेरी इतना आसान नहीं होता है क्योंकि जब कोर्ट के मैटर में हम लोग जाते हैं, तो वहाँ इतने चक्कर भी लगाने पड़ते हैं, फिर वहाँ पे हमारे जजेस होते हैं, उनके हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट छुट्टियाँ होती हैं, तो टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा होता है। तो कम से कम आपका 1 डेढ़ साल से ज़्यादा भी हो सकता है, पर ये गुरुपा की कृपा है कि मुझे इतने सारे वहाँ भी मेरी किसी काम में भी रुकावट नहीं आई संगत जी। इतनी जल्दी से हो गया वो फाइनल में, तो 1 महीने में मैंने सारा काम निपटा लिया और गुरुपा ने वहाँ पे जो भी जज थे उनकी बदली भी करवा दी उनके लिए। बिना जज के मेरा जजमेंट हुआ, मतलब जो भी मेरे काउंसलर थे उनके थ्रू ये सारी चीज़ें गुरुपा ने करवाई। तो ये मेरे गुरुपा ही सबसे बड़े जज थे, उन्होंने ये वो सब उनकी देख-रेख में ही मेरे सारे काम होते गए और उन्होंने ही मुझे हाथ पकड़ के सारे काम करवाए। मेरे जज भी वही थे, मेरे वकील भी वही थे और मेरे जो भी वहाँ पे मतलब जो भी मेरा काम देखने वाले सारे लोग थे, वो भी उसमें भी मेरे गुरुपा ही थे कि मुझे हर दिन वही काम उसी दिन पे वो करवा लेते थे। तो बहुत-बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। जैसे मैं पहचान जाती थी कि ये मेरा काम अगर कुछ हो गया, तो मैं समझ जाती थी कि ये मेरे गुरुपा ही है, जो मुझसे इतने प्यार से मेरे जो लाए थे। वो तो मेरे पापा के जो ख़ास दोस्त है, फ्रेंड के बेटे हैं, तो वो भी मेरे पहचान के ही थे। तो मुझे बिल्कुल भी ऐसे कहीं भी दिक्कत नहीं आई संगत जी, बहुत आसानी से हो गया और फ़ीस तो क्या मानो ये गुरुपा की ने इतने मुझे इतने कम इसमें किया संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे। जो काम लैक्स में होता है जो 1 लाख के ऊपर ही तो कम से कम हम लोगों को पूरा ये होता है, अगर हमने टोटल किया पूरा तो। पर गुरुपा की कृपा से देखिए वो तो फ्रेंड अंकल के बेटे थे और उन्होंने कहा मैं अंकल से बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारे घर से रिलेटेड लोग हैं, तो उन्होंने बिलो 50 हमारे अमाउंट ली संगत जी। तो देखिए इतना बड़ा मेरा केस, वो भी और अमाउंट भी इतना मतलब जो कि बहुत ही मतलब केस से जो भी रिलेटेड अमाउंट है उससे भी बहुत ज़्यादा कम था। तो ये सब मेरी गुरुपा की कृपा है। जैसे ही मैंने सोचा तो मैंने पहले अपने गुरुपा का शुक्राना किया। तो संगत जी, ये जो जैसे भी काम है हम जहाँ भी जाते हैं या कहीं भी जाइए, आप जॉब में जाइए या कहीं से कोई भी रिलेटेड अगर काम हमारा रुका हुआ है, नहीं लग रहा है हमें कि नहीं ये नहीं हो पा रहा है, तो वो हमें सिर्फ़ गुरुपा के ऊपर बोलना चाहिए और गुरुपा के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। वो अटका हुआ काम कैसे पूरा होगा, ये गुरुपा ही करवाते हैं, हमें सोचना भी नहीं चाहिए। और जैसे गुरुपा बोलते हैं मुझे पता होता है, मैं सिर्फ़ बोलती हूँ गुरुपा ये ऐसे होने वाला है, तो मैं सोचती नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर गुरुपा ने कहा तो वो होना ही है और उसी दिन हो रहा है। जब मेरा काम उस दिन हो जाता है तो मैं समझ जाती हूँ कि ये गुरुपा ने ही तारीख डिसाइड किया और इस दिन ही होने वाला है। या तो ये थर्सडे आ जाता था, कभी मंडे आ जाता था, यही वो दिन थे संगत जी कि वो डिसाइड होता है गुरुपा और वो डिसाइड करते हैं और उस दिन ही मेरे सारे काम बनते चले गए और मेरी डेट भी ऐसी होती थी कि जो 7 नंबर आ जाएगी।
तो ये सब मैं जैसे ही वो नंबर या डेट आ जाती थी या डे आ जाता तो मैं समझ जाती थी गुरुपा ने डिसाइड की ये डे तो वो काम होना ही है। तो ये जो भरोसा है और अच्छे कर्म जो मुझसे गुरुपा ने करवा लिए, तो उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। मेरा विश्वास 1% भी डगमगा नहीं। जैसे मैंने संगत जी कहा है डे 1 से मेरा गुरुपा से डायरेक्ट 1 टू 1 कनेक्शन, ना मैं किसी के पास गई, ना कहीं गूगल पे सर्च किया कि ये मेरे गुरुपा कौन हैं, उनके बारे में। जैसे-जैसे मैं सत्संग सुनती गई, जैसे-जैसे गुरुपा के मैसेज आए, उन मैसेज में मुझे पूरा भरोसा जो मेरे से रिलेटेड थे कि नहीं, गुरुपा अगर आज कहा है गुरुपा ने कि मैं आज आने वाला हूँ तेरे घर, तो वो गुरुपा आएँगे और किसी रूप में आएँगे। अगर उनको पहचानना है, अगर बोला है कि मैं बच्चे के रूप में आए, तो वो बच्चा मेरे पास में आएगा और मैं समझ वो मैसेज मेरे दिमाग में रहता है, नहीं आज गुरुपा ने ये मैसेज भेजा था, अगर ये बच्चा आए, तो ये मेरे गुरुपा ही है। तो ये जो विश्वास और ये जो कनेक्शन मेरा हो गया था संगत जी, जो फर्स्ट डे से था गुरुपा के साथ में, तो वो कनेक्ट होने में मुझे पहले थोड़ा-सा टाइम लगा, पर विश्वास बिल्कुल नहीं डगमगाया और जैसे ही मुझे मैसेज मिलता है, तो मैं समझ जाती हूँ कि वो मैसेज मेरे लिए है और जैसे हमारा कनेक्शन बनता है संगत जी, अगर कोई भी परेशानी है, तो हमें गुरुपा मैसेज देते हैं और हम समझ जाते हैं कि ये परेशानी मेरे लिए चल रही है और इसी के लिए गुरुपा ने मैसेज दिया। तो जैसे हम मैसेज का जो भी मैसेज का जो भी हिंट समझ जाते हैं संगत जी, तो हमें पता चलता है कि ये हमारे लिए है और ये हमारे गुरुपा ने भेजा है। तो ये जो विश्वास है, ये जो हमारा अ, गुरुपा के साथ में जो नाता और ये कनेक्शन बना हुआ है, इसको ही गुरुपा बोलते हैं। यही भक्ति भाव है बेटा, और यही तेरा समर्पण है। तो संगत जी, मैंने गुरु जैसे आपसे कहा था कि गुरुपा सिर्फ़ हमें हमारा प्यार और हमारी भक्ति देखती है। हमारे किसी चीज़ के लिए उनका ये नहीं होता है कि नहीं मुझे इसी रिचुअल्स में, किसी वहमों में नहीं पड़ना है, किसी रिचुअल्स में नहीं पड़ना है। बस सच्चे मन से याद करना है और जो भी हमारा नित्य में उसे कंप्लीट करना है और हर चीज़ में, हर डिसीजन में हमें अपने गुरुपा को अपने साथ में रखना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे लिए सही क्या है। बस वो विश्वास होना चाहिए, अगर गुरुपा ने ये कहा है तो मुझे इस तरह से करना है और कुछ भी करने से पहले अगर मन में कोई डाउट है, तो हमें गुरुपा से कहना है। तो मैं वही करती हूँ और मैंने बोला भी है गुरुपा को कि गुरुपा मुझे ये ऐसे लग रहा है और ये काम कब होगा। तो बस मुझे पता होता है कि ये अगर ये काम में मुझे मेरा डिले हो रहा है, तो उसका अभी टाइम नहीं आया है, तो वो उसी टाइम होगा जब मेरे गुरुपा डिसाइड करेंगे। तो ये जो विश्वास है, ये मेरा कनेक्शन जैसे गुरुपा के साथ में बनाया हुआ है, एक पिता के साथ में एक बेटी का रिश्ता होता है, वैसे होता है। तो हमारे लिए वो रिश्ता बहुत मज़बूत होता है संगत जी। ना कि अगर मैं भी देखती हूँ संगत जी और गुरुपा ही कैसे कहते हैं कि तुम किसी एक के बने रहो, तुम इधर-उधर भटको मत, तुम्हारी सारी अरदासें तुम कहीं पे भी जाओ पर अरदास पूरी यहीं पे होनी है। तो संगत जी, मैं जब से जुड़ी हूँ पहले भी मेरा ऐसा ही था कि मैं सिर्फ़ अपने गुरु भगवान और मैं भोले बाबा, अपने भोले बाबा के सिवा मैं किसी के पास में नहीं जाती थी और ना ही ये था मुझे कि नहीं ये करो, वो करो, ऐसे करो, और ये सब करने के बाद में भी उनके घर जाके इतने कर्म ऐसे होते थे, पता नहीं क्या-क्या मैं खुद देखती थी। तो मैं यही सोचती कि ये लोग इतना सब करते हैं और ये इनका बिहेवियर, इनका व्यवहार ना अपने घरवालों के प्रति या फिर कहीं भी वो लोग रहते हैं बाहर भी, तो ये कैसे व्यवहार करते हैं और इतनी सारी पूजा-पाठ करते हैं, ऐसे मेरे मन में आता था संगत जी। मैं सॉरी अगर किसी को ऐसे लगा कि मैं उनके लिए बोल रही हूँ, तो बिल्कुल नहीं है। पर ये सब चीज़ें भगवान भी देखते हैं संगत जी कि ये जो हमारा विश्वास, मतलब मैं कहती हूँ कि नहीं, अगर यहाँ पे नहीं हम लोग नहीं गए, इस मंदिर में नहीं गए, तो हम लोग उस मंदिर में जाओ और फिर हम सब हमारे भगवान सबकी सुनते हैं। चाहे आप हम श्री कृष्ण भगवान के पास जाए, श्री राम जी के पास जाए, श्री हम हनुमान जी के पास जाइए, चाहे हम माता रानी के पास में जाइए, हम सब और इन सब हमारे गुरु भगवान के दर्शन हमारे गुरुपा में ही है। जैसे गुरुपा बोलते सब में मैं ही हूँ, मेरे से ही ये सब भगवान है। तो ये इस चीज़ को हमें समझना चाहिए संगत जी। तो ये जो हम लोग भटकते हैं ना, जैसे गुरुपा भी बोलते हैं और मैं ये मैसेज पढ़ के मुझे थोड़ी-सी हँसी भी आती है कि किसी एक के बने रहो, इसी पे विश्वास करो। और गुरुपा से जुड़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि हमें किसी, स्वयं हमारे महाशिव हमारे साथ में है, समय हमारे गुरुपिता हमारे साथ में, तो डगमगाने के और विश्वास की डोर को हमें पक्के रखना है हमें बस। और ये जो प्यारा सा मैसेज मुझे गुरुपा ने दिया, उसके लिए गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना। और मेरी सेहत के लिए भी हो रहा है, तू जो कुछ ज़्यादा ही तनाव ले रही है और अपनी सेहत ख़राब कर रही है, तो गुरुपा मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी। और वैसे भी थोड़ा सा बीच में लग रहा था मुझे, पर आपके होते हुए मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, सब आप ही मेरा ख्याल रख रहे हो गुरुपा। और
अभी जो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा एक सूजन आई, 10 दिन हो गए संगत जी भर मेरे घुटने का, और इसमें मैं कहीं पे खड़ी हो गई थी बस में, एक जाई थी, वो थोड़ा लॉन्ग ट्रैवल्स था, और उसके तब से ये हुआ है, तो पूरी सूजन हो गई है, तो मुझे उठने-बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और मैं जल प्रसाद और चंदन टीका ही लगाती हूँ, पर दर्द होता है मुझे, तो मैंने अभी तक उस चीज़ के लिए डॉक्टर को नहीं बोला, जबकि दूसरी और चल रहा है, तो अ, गुरुपा ने मुझे उसका भी मैसेज देके, बेटी तेरे पैरों का दर्द थोड़ी दिन में वो सूजन कम हो जाएगी, थोड़ी दिनों में, तो उसकी चिंता मत कर, तेरे लिए मैं बैठा हूँ ना, तो गुरुपा आप ही सब ठीक कर देंगे, और जो भी है उसका जो भी है दर्द अभी शारीरिक कष्ट है, उसके लिए भी गुरुपा आप जो भी सत्संग भेजा मैं ज़रूर सुनूंगी, और जो भी उसका ये होगा संगत जी, जो भी कष्ट का निवारण गुरुपा जो सत्संग सुनवा के करेंगे, वो भी मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो बहुत-बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। ऐसे ही संगत जी हमें अपनी गुरुपा के ऊपर विश्वास बनाए रखना है। हमारा जो भी काम चल रहा है उसके में हमें अपनी गुरुपा को अरदास करनी है। जब उसका समय आएगा तो हर एक संगत का और हर एक परिवार का वो जो भी उन्होंने अरदास की है वो गुरुपा पूरी कर देंगे। तो इसी विश्वास के साथ में संगत जी आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग में विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी गुरुपा के आशीर्वाद से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, और सबको हेल्थ और वेल्थ की ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अमृत बेले का गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा कह रहे थे, मैं गुरुपा के महामंत्र से गुरुपा का शुक्राना, गुरुपा के महामंत्र से गुरुपा का शुक्राना सत्संग शुरू कर रहे हैं। सच्चे बोलने में कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरुपा कह रहे थे 14 जून को मैसेज आया कि मैंने तेरा कल बहुत बड़ा कष्ट काटा। 15 जून को आया, नहीं 14 जून को आया कि मैंने तेरा कल बहुत बड़ा कष्ट काटा, तो शुक्राना कर। उसके लिए गुरुपा हमारा बहुत बड़ा सचमुच घाट है। संगत जी, मेरे शरीर में एक साइड में इतना तेज दर्द था, इतना तेज कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा था। ब्लैक मैजिक था संगत जी। मैं बोली गुरुपा रात भर था संगत जी। सुबह उठी तो मैं सोच रही थी कैसे उठूंगी, क्या करूंगी। गुरुपा ने सब कराया, यहाँ तक कि मैं मार्केट रोड के सब घुमाई, एक खुराक दवा भी नहीं खाई। गुरुपा का इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हमारे घर परिवार पे ब्लैक मैजिक करने वाले वो नहीं, पीछे नहीं हटता है, लेकिन गुरुपा खड़े हैं, बचा रहे हैं, कह रहे हैं घबरा मत, चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं सारा संभाल लूँगा। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कह रहे थे कि तेरे भाई अंकल पे भी, भाई अंकल की तरफ से शुक्राना कर, भाई अंकल की तरफ से गुरुपा अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना उसके लिए, हर कष्ट काटने के लिए गुरुपा। उसके गुरुपा कह रहे थे तेरे भाई अंकल को उसके साथ वाले ही उससे जलते हैं, ऑफिस वाले ही लोग जलते हैं। गुरुपा उन लोगों को सद्बुद्धि दो और मेरे भाई से ना जले। मेरे भाई बहुत अच्छा इंसान है, सीधा साधा है, उससे ना जले। ये है कि मेहनती है, काम अच्छे से जो काम करता है लगन मेहनत से करता है। गुरुपा बेईमानी उससे नहीं करता है, इसी से लोग जलते होंगे। ईमान जय गुरु जी, उसको उसकी रक्षा करना गुरुपा। गुरुपा ने किया है रक्षा संगत जी, इसलिए गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। भाई अंकल की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। पति अंकल की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बेटे अंकल की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी गुरुपा शुक्राना आपकी छोटी सी परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ, फिर दोबारा अगला सत्संग लेके गुरुपा के चरणों में आऊंगी। जय गुरु जी।